This long unwinding stretch of road leads to the Prime Minister's much publicized pet project, Jewar Airport, also popularly known as the Noida International Greenfield Airport. The new airport is around 70 kilometers from the Indira Gandhi International Airport in New Delhi and about 40 kilometers from Noida. Spread across 5,800 hectares of land, the whopping 30,000 crore rupees project is tipped to be the largest airport in the country and will be built in 4 phases over a period of 30 years. But the project is mired in controversy over the arbitrary manner in which the government has gone about acquiring land from farmers by flouting rules and throwing land acquisition norms to the wind. जमीन हमारी गई है, बाजार दर का जो 2 गुना दिया, 4 गुना की हमारी लड़ाई थी, 4 गुने की मांग है, तो 4 गुना हम लेना चाहते हैं, इसलिए हमने अभी पैसा नहीं लिया 1 रुपये भी अभी। मकान फोड़वा दिए, जैसे भी और मशीन चढ़ा कर आप सुना फोड़े, जबरदस्ती फोड़वा, पुलिस लावे हैं, तब भैया सब ने फोड़ दिए। We spoke to farmers from across 8 villages who were evicted to give room for the Jewar Airport project. Many of them told us frightful stories of how they were forcibly evicted without notice and how in a span of a few minutes their homes were razed to the ground. आपको तो हटा दूंगा। नहीं ये बात नहीं है। चलिए मैं हटा दूंगा आपको। मैं आपको हटा दूंगा। नहीं 2 दिन ये सब तो ये आप यहाँ रहते हैं क्या इसमें? चलिए हमको दिखाएंगे जरा। हाँ चलिए। This is Nagla Sharif Khan village. The effects of the forcible eviction has been so hard on people that we heard heartrending stories of farmers who lost their homes, some even staying in dingy cow sheds alongside their cattle. ये देखो सर, इस तरीका से बसावट कर रहे हैं। ये गांव कौन सा हुआ आपका? ये नंगला शरीफ खान जी। तो हमें डर इतना लगे सरकार से बहुत ज़्यादा। दूसरे नंबर उनने जबरन तोड़े हमारे मकान दुकान तोड़ कर, और आज तक हम पैसा को भटकते डोलने हैं। और जो हमारा जो पैसा है बाकी उसकी कह रहे हैं कि तुम पर और हल्टी रिकवरी आ रही है। आपके ऊपर ही पैसे आ रहे हैं? जी हाँ, और मेरे पे ऊपर और पैसा बता रहे हैं। ये यहाँ पे रहते हैं आप? सर यहाँ रहता हूँ मैं। देखो किस तरह से परेशानी हो रही है, बारिश में, धूप में, ताप में, मच्छरन में। देखो यहाँ पर आप जानवर भी बांधते हैं क्या? जी और हाँ, उनके बगल में रहते हैं? हाँ जी सर, उसी के बगल में रहता हूँ। क्या करूँ सब। ये वाला जो घर है इसमें आप रहते हैं सर? हाँ ठीक है। एक चीज़ बताइए कि आपकी ज़मीन कितनी है सर? 50 बीघे आपकी ज़मीन? हाँ जी 50 बीघे ज़मीन है। आप यहाँ रह रहे हैं अभी? यहाँ रह रहे हैं। अच्छा। चौगने की मांग है और विस्थापन के लिए हमें कवर्ड एरिया पूरा चाहिए। 1000 गज है तो 1000 गज चाहिए, और खेत की चौगनी कीमत चाहिए। बिना नोटिस के ही मकान गिराया हमारा, कोई नोटिस ना हम पे कोई। यहाँ में सामान पूरा दबगा, सामान पूरा दाम सामान दबगा, हमारा कुछ भी ना बचाओ। क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं आपको? हमारे पैसे ना डले। अच्छा, पैसे भी नहीं आए हैं आपके मुआवजे के? और नहीं, क्योंकि यहाँ पैसे नहीं है, कट के आ रहे हैं पैसे। The farmers have been protesting against the arbitrary manner in which the government brought in a notification that changed the status of their land from rural to urban. According to the LARR Act, that is the Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act of 2013, the compensation is 2 times the market rate for urban land and 4 times the market rate for rural land. The farmers claim that just months before acquiring the land from them, the government changed the status of the land from rural to urban, which resulted in the farmers getting only half the compensation. जो डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद जमीन का 4 गुना मुआवजा मिलना चाहिए किसानों को, जबकि उनको दिया गया है 2 गुना मुआवजा। और ये मैं नहीं बोल रहा, ये डॉक्यूमेंट्स बोल रहे हैं, जो डॉक्यूमेंट्स सरकार ने खुद बनाए हैं, शासन ने खुद बनाए हैं। यहाँ गड़बड़ी हुई। We also went to Rohi village. Here, we were told that the farmers had not given video consent for acquiring their lands and that their approval on stamp paper was taken by force. मैं इस वक्त हूँ रूही गांव में। रूही ये गांव जो है, यहाँ पर ही इस इलाके में ही पूरा जेवर एयरपोर्ट बनना है। यहाँ गांव के कई सारे लोग मौजूद हैं जिनसे हम लोग बातचीत करेंगे कि क्या इनको मुआवजा मिला या नहीं मिला। इनके घर क्योंकि आप अगर देखें तो सब कुछ सारा तोड़ दिया गया है, पूरा इलाका जो है खंडहर हो चुका है।
सर अपना परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम अजय प्रताप सिंह है और मैं जेवर एयरपोर्ट जो हमारे किसान संघर्ष समिति बनाई उसका मैं अध्यक्ष भी, गांव के सम्मानित लोगों ने, किसानों ने मुझे बनाया है। ये एक्ट कहता है, भूमि अधिग्रहण एक्ट कहता है कि हर प्रति व्यक्ति की, प्रति किसान का वीडियोग्राफी हो जिस समय सहमति ली जा रही हो, लेकिन इन्होंने वहाँ भी कानून का उल्लंघन किया है। उस कानून में रूल 18 सब रूल 9 में क्लियर लिखा हुआ है कि कंसेंट की पूरी प्रक्रिया का वीडियो रिकॉर्डिंग होना चाहिए और इट शुड बी ऑन रिकॉर्ड, और इस चीज को स्किप किया गया है, उसकी कोई वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं, क्योंकि इन लोगों ने जिस तरीके से कंसेंट लिया है, जबरदस्ती लिया गया है, बेवकूफ बनाकर लिया गया है। बेचारे किसानों को समझ में ही नहीं आया कि उनसे कंसेंट के नाम पे कब सिग्नेचर और कैसे क्या करा लिया गया। Our team also decided to confront the BJP MLA from Jewar on the allegations of video consent not being acquired from the farmers. This is what he had to say. लेकिन जो आपने भी ड्राफ्ट आपने तैयार किया था घूमने के, उसमें है कि आपको वीडियो डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए जब आप सहमति ले रहे हो किसानों से, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। एक चीज का वीडियो डॉक्यूमेंटेशन हुआ है, वो प्रशासन के पास मौजूद है, और दूसरा किसानों की सहमति से हुआ है, किसानों ने स्वयं सहमति दी। आपको पता होना चाहिए कि इंडस्ट्रियल एक्ट की धारा 12A जहां कहीं भी इम्पोज हो जाती है वो शहरी क्षेत्र घोषित हो जाता है, और ये एक्ट में लिखा हुआ है कि शहरी क्षेत्र का 2 गुना और ग्रामीण क्षेत्र का 4 गुना मुआवजा किसानों को दिया जाएगा। When we reiterated our question and asked the MLA whether or not the farmers deserved 4 times the compensation, he finally admitted that the farmers rightfully deserved compensation which should have been 4 times the market rate. But then he blamed the country's poor economy for the low compensation. As an afterthought, after making this startling admission, he swallows his own words and says the farmers have got a better deal now. मैं आज भी कहता हूँ किसानों को 4 गुना मुआवजा मिलना चाहिए था, लेकिन प्रोजेक्ट की वायबिलिटी, देश काल और परिस्थिति, क्षेत्र का पिछड़ापन, लेकिन उसके बाद मैं ये भी कहूँगा कि जो सुविधाएं हमने इस सरकार से किसानों को दिलवाई हैं वो उस 4 गुने मुआवजे से ज़्यादा हैं अगर कैलकुलेट की जाए। बहुत अच्छा सहयोग मिला वहाँ के किसानों ने, बहुत ही पॉजिटिव रुख अपनाया, जिससे कि आज आप ये देख रहे हैं कि प्रोजेक्ट शुरू है, बाउंड्री बन रही है, समतलीकरण चल रहा है, ये सब किसानों के सहयोग से। And then the ADM goes on to say that initially the market rate of the farmers' land was very low. The value of the land only increased after the airport project was announced. देखिए ऐसा है कि वहाँ पे अगर आप देखते उस समय, जिस समय परियोजना शुरू हुई थी, उस समय तो रेट बिल्कुल नहीं था। प्रोजेक्ट आने के बाद तो कोई कुछ भी कह सकता है कि इतना रेट हो गया, उतना रेट हो गया, लेकिन उस समय जो था स्थिति वही थी। From the introduction of a controversial notification to lowering the compensation amount, from not getting video consent to bulldozing the farmers' homes without prior notice, the allegations against the government are plenty. But this one is most shocking. स्टाम्प, जिस स्टाम्प पर साइन कराए गए हैं सहमति लेने का और पेमेंट करने का, भुगतान करने के लिए, वो स्टाम्प किसान लेकर नहीं आया। उस स्टाम्प को ADM LA गौतम बुद्ध नगर, SDM जेवर, DM गौतम बुद्ध नगर स्वयं लेकर आए हैं, जबकि मेरे नाम का स्टाम्प तो कोई और नहीं लेकर आ सकता, मेरे साइन होंगे जहाँ से स्टाम्प लिया जाएगा, लेकिन इन्होंने पूरे किसानों के स्टाम्प एक साथ ले आए सबके नामों से, जो फर्जी है, जो कानूनन सही नहीं है। 420 का काम किया है इन्होंने। मैं आपको स्टाम्प का फोटो दिखाऊंगा, आपको दूंगा, उस पर लिखा है कि मैंने जिस समय सहमति ली जा रही थी तो उस स्टाम्प पे दस्तखत हो रहा था, उसमें लिखा है कि मैंने पैसा प्राप्त कर लिया है, पैसा अभी तक नहीं मिला है। मतलब अगर जिसने स्टाम्प में फाइल भर दी है, सहमति दे दी है, स्टाम्प पे लिखा है कि मैंने पैसा प्राप्त कर लिया है, स्टाम्प पे तो साइन जब ही होना चाहिए था जब पैसा प्राप्त कर लेगा किसान। In Rohi village, we also heard stories of how commissions were being demanded from the farmers by the district administration. Farmers told us that bribes were being solicited by officials for increasing the valuation of the farmers' lands. People in Rohi claim that files don't move if they don't grease the palms of officials. गांव के सब में गरीब हम हैं, हमें कोई बोलन भी ना दे, आज काम भी हो रहे हैं वो पैसा से हो रहे हैं, पैसे डल लें तो लाओ जी 1-2 लाख रुपए दो, जब उनके पैसे डलेंगे हमारी कोई सुनवाई कुछ नहीं हो रही है। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि किन किन स्तरों पर जैसे सुनने में आ रहा है कि बहुत ज़्यादा घूस देना पड़ रहा है? हाँ, जैसे अभी हमने पैसा नहीं लिया, हमारे साथ में और 500 तकरीबन किसान हैं, इनका पैसा इन्होंने ट्रिब्यूनल कोर्ट बनाया है प्राधिकरण में,
जिसको ये ट्रेजरी बोलते हैं, तो वहाँ पैसा डाल दिया है 378 करोड़ रुपए। डराया धमकाया इन्होंने किसानों को, तो वहाँ फाइल भरवा ली इन्होंने। अब वहाँ 10% से 2% से लेकर 10% तक की मांग करते हैं ट्रिब्यूनल कोर्ट में भी। एडीएम ऑफिस में जाएंगे, प्राधिकरण ऑफिस में जाएंगे तो वहाँ भी पैसे की बात है। पटवारी के पास जाओ, वहाँ की भी पैसे की बात है, पैसा लेते हैं। लेखपाल की ऑडियो रिकॉर्डिंग है मेरे पास में। विस्थापन में जब यहाँ मकान तोड़े जा रहे थे तो एसडीएम के ड्राइवर बात कर रहे हैं कि तुम्हारे मकान का मूल्यांकन कम हुआ है तो मैं बढ़वा दूंगा 30 लाख रुपए मुझे दे देना, तुम्हारे 60 लाख बढ़वा दूंगा 30 लाख। वो ऑडियो भी है हमारे पास। तो इसी तरीके की डीएम से लेके एडीएम तक, नीचे से और पटवारी से लेके लेखपाल से लेके ऊपर तक, ये सब इस तरीके से इन्होंने अपना प्राधिकरण के कर्मचारियों ने सबने ही पैसे का घूस लिया है। तो 2 साल हो गए फाइल लगे हुए, अभी तक पैसा नहीं आया। अब ये बताओ, इन्होंने घर तोड़ दिए तो मकान वहाँ पे किससे बना है? अब वहाँ पे बात करते हैं, वकील साहब, वकील कर रखे हैं हमने वहाँ पे, तो वकील साहब कहते हैं कि जी जज साहब जो 2% मांग रहे हैं। अब हम कहाँ से 2% दे जब पैसे ही नहीं आया? Ajay Pratap Singh told us that some villagers were forcibly evicted and many others gave their consent after they were threatened with dire consequences. He also told us that even the government's rehabilitation plan is replete with commission demands. इन्होंने क्या काम किया कि जो हमारे पास लोन था कृषि भूमि के लिए, जो लोन लेते हैं हम लोग, तो उस लोन को आरसी इन्होंने बैंक तहसील भेज दी, भय दिखाया, बोले जेल भेज देंगे आपको। किसी पे तेल का, राशन का डीलर है, कोई तेल का डीलर है, उसे भय दूँ को नहीं तुम्हारा राशन बंद कर देंगे। कोई अध्यापक है, कोई सरकारी किसी भी डिपार्टमेंट में, बोले तुम यहाँ कैसे आ गए, तुम्हारी नौकरी, तुमने आंदोलन में आ गए, तुम्हारी हम नौकरी सस्पेंड करा देंगे। तो लोगों ने, छोटे छोटे किसान है, लोगों में दिल नहीं है, आज भी यही हाल है। तो लोगों ने कहा, बोले भाई क्यों बेकार की लड़ो, क्यों इनसे सहमति मांग रहे हैं, दे दो। पर लेकिन ये वायदा किया गया था सहमति के समय कि हम 4 गुना दिलवाएंगे। आपका गाँव उजड़ गया है एक तरह से, खेत भी चले ही जाने हैं, लेकिन तो अब भविष्य क्या देख रहे हैं आप लोग अपना, कि सरकार ने क्या वादे किए हैं कि वो किस तरह की सुविधाएं आपको दिलाएंगे? नौकरी का वादा या फिर उस तरह की चीज़ें बताइए। सरकार ने नौकरी का वादा किया, लेकिन नौकरी 2 ऑप्शन है उसमें, या तो 5.5 लाख रुपए या नौकरी। तो नौकरी तो लोगों ने 5.5 लाख रुपए, अधिकांश मतलब लोगों ने फार्म भर दिया बच्चों ने, 5.5 लाख रुपए ले लें कि पता नहीं नौकरी, एयरपोर्ट कब बनेगा, कैसे बनेगा, कब नौकरी मिलेगी। लेकिन उनको भी पैसा नहीं दिया गया, उनसे भी ये सौदा किया जा रहा है कि भाई आप हमें इसमें कमीशन दो हमें। When we questioned the ADM on the bribery allegations, he was quick to respond. He in turn asked us, why are the farmers going to the Treasury Department? They should just look for their money in their bank accounts. तो जो ट्रेजरी से पैसा निकालने के लिए वो कह रहे थे गाँव में घूस देना पड़ रहा है, इस पर आप नहीं, अब ये तो मेरी समझ में तो भाई आरटीजीएस से पैसा जा रहा है तो आप क्यों जा रहे हैं ट्रेजरी? हमारे यहाँ से टोकन गया, ट्रेजरी वाले क्लिक करेंगे, आप क्यों जाते हैं ट्रेजरी? जाइए नहीं, आप अपने खाते में पैसा देखिए। Many other farmers claimed that those who took part in protests against the government have been silenced by the authorities. Some farmers have been arrested and FIRs have been slammed against them. पुलिस वाले आपको पकड़ के लेके चले गए थे? पकड़ के हम बस में बैठा रहे थे यहाँ। हाँ जी। क्या, क्यों बैठा रहे थे आपको? पता नहीं क्यों, कहाँ को दे जा रहे हैं हमें, जेल को दे जा रहे हैं सीधे। आरोप आपके ऊपर केस भी हुआ था क्या? केस पर हम सबके नाम डाल रखो। सर आपके ऊपर भी केस है? जी हाँ। ठीक है, आपके ऊपर क्या क्या आरोप लगाए हैं पुलिस ने? करने केस क्या 13 धारा है हमारे पास। मीटिंग हो रही थी शांतिपूर्वक, चुपके से हमारे ऊपर आकर के एक आदमी के ऊपर 2 पुलिस कांस्टेबल पकड़ करके, हमारा गलवान पकड़ करके गाड़ी में ठूंस रहे थे, मारा पीटा, ये काम किया। 2 बच्चे पकड़वा दिए, 2 बच्चे हमारे पकड़वा दिए यहीं थे, मकान टूट रहा, उनकी जमात करा के लाए हम। हाँ, मोबाइल छीन लिया, मोबाइल आज तक ना दिया अधिकारी ने हमें। तारीख पर गई कई। केस चल रहा है? हाँ, केस चल रहा है। हाँ, 2 बच्चे पकड़वा दिए हमारे। क्यों आपको पुलिस वाले उठा ले गए थे उस वक्त? एक आए सिपाही, बहुत तुम चलो, नहीं भैया मेरे को क्या करे, वो पकड़ के वहाँ ले गए और जब वहाँ ने छोड़ दिया। मैं देखा तो उन्होंने जो बाहर के गाँव में आदमी बुला रखे ना, उन्हें पकड़ा, हमारे लगे, उनकी पुलिस के भी लगे, उनकी गाड़ी भी टूटी। मैंने कई बार पहले भी सुना था कि किसानों ने 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार मुआवजा लिया एक ही जमीन का, पर सरकार ने दिया तो
उसे बोलते हैं वेलफेयर एस्टेट। उसने 1 के बदले 5 बार दिया। यहां तो किसानों को उनका अपना हक ही नहीं दे रहे हो आप। ये ऐसा पहली बार हो रहा है, कम से कम मेरी अपनी इस उम्र में मैं ऐसा पहली बार देख रहा हूं। The tension is palpable. Even this spot, where the Prime Minister once laid the foundation stone for the Jewar Airport, has today been turned into a fortress. We were not even allowed to go anywhere near the foundation stone. ये जो आप मेरे पीछे पत्थर खड़े हुए देख रहे हैं, ये वही जगह है जहाँ पर जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास किया गया है। वहाँ पर गार्ड्स लगे हैं जो हमें वहाँ नहीं जाने दे रहे हैं, इसलिए हम थोड़ा दूर से इसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। A few days back, it was from this very same spot that Prime Minister Narendra Modi had laid the foundation stone for the project in a fancy event. During this event, both the Prime Minister and the UP Chief Minister were seen thanking the farmers for giving their consent for the project without any controversy. हम मिलकर आगे बढ़ेंगे इसी विश्वास के साथ। आपको अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की फिर एक बार बहुत बहुत बधाई। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज के इस अवसर पर आप सबको बधाई दूंगा उन 7,000 से अधिक किसानों का जिन्होंने बिना किसी विवाद के जेवर एयरपोर्ट के लिए जमीन स्वयं मुख्यमंत्री आवास पर लखनऊ में आकर के उपलब्ध करवाया है। उन सभी किसान भाइयों का भी मैं अभिनंदन करते हुए आज के इस अवसर पर मैं पूर्वी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आप सभी भाइयों बहनों को हृदय से बधाई देता हूं। But the ground reality is completely different. Farmers are devastated. We even visited the village where they have been rehabilitated. There was neither electricity nor water supply in the new settlements. Not even graveyards to bury the dead. जेवर एयरपोर्ट बनाने के लिए जिन गांवों को उजाड़ा गया था, उन्हीं गांवों के नाम पर इस इलाके में जहां पर मैं इस वक्त खड़ा हूं, यहां पर उन्हीं गांवों के नाम पर ये गांव अलग से बसाए गए हैं। पॉकेट, छोटे छोटे पॉकेट बना के बसाए गए हैं। ये पॉकेट 7 है। गांव का नाम है नंगला छीतर। यहाँ पर लोगों को बसा तो दिया गया है, लेकिन अभी भी अगर आप देख सकें तो इधर पानी की टंकी बनी हुई है, बन रही है, लेकिन अभी तक लोगों को पानी की सप्लाई शुरू नहीं हुई, जबकि लंबे समय से लोग यहाँ पर रह रहे हैं। यहाँ पर देखिए पानी की टंकी का निर्माण अधीन है। जितने भी लोग विस्थापित यहाँ हुए हैं सभी अपने समरसेबिल कराई हैं और अपना अपना जनरेटर, ना लाइट की व्यवस्था है ना पानी की है, अपना जनरेटर खरीदा है, जनरेटर से बिजली बनाई है, बिजली बना के जब पानी निकाला है, जब यहाँ अपना कंस्ट्रक्शन का काम मकान का तैयार करा रहे हैं मकानों को। ये लिख के दे रहे हैं, उस कमेटी एक बनाई थी कि लिख के दे रहे हैं हम सारी व्यवस्था करने के बाद ही विस्थापित करेंगे, लेकिन इन्होंने कोई व्यवस्था नहीं की। ना तो पानी की कोई व्यवस्था है अभी, ना बिजली की है, ना मंदिर बनवाया वहाँ, ना स्कूल बनवाया, ना शमशान घाट है, ना कब्रिस्तान है, किसी चीज़ की कोई व्यवस्था नहीं है वहाँ पे भी। Some farmers told us that while they are not even able to live in dignity, even the dead are denied dignity in death in these new settlements. What worries people the most is the fact that the new settlements don't have crematoriums or graveyards, because of which they are forced to request the neighboring villagers to lend their burial and cremation grounds. Sometimes it seems the bodies are turned away. नहीं कब्रिस्तान है, नहीं शमशान है। खुशामद करते हैं कि दूसरे इनके कब्रिस्तान इनमें दबे। 2 बार डेड बॉडी, एक बार मेहंदीपुर चलेगी जी और एक बार यहाँ जेवर दबने। दबन नहीं देते, नो कहते हैं तुम्हारे तो मरते रहेंगे, कब तक दबेंगे जी। और कब्रिस्तान में तो भैया दुर्गति हो रही है, कहीं भी जो ले जा में दफनाने से हर आदमी मुंह मोड़ हो गया। The displaced people have been rehabilitated in these settlements, which have been poorly managed. For instance, Sabra spent all her money for building her new home, but the construction has now come to a grinding halt, as her plot was not numbered properly. जब 69 इस्माइल का यहाँ है तो हमारा 70 यहाँ कैसे आएगा? हमारे यहीं तो आएगा 70। हम तो इसी प्लॉट बना हुए थे, इसमें मेरी पूरी रकम लग चुकी, 11-12 लाख रुपया लग गया मेरे यहाँ। यहाँ पे चिनाई रोक दी, लेंटर पर आके चिनाई रुक गई हमारी, और यहाँ में पूरी रकम लग गई।
अब मैं कहाँ कहाँ से ला के लगाऊंगी दूसरी जगह, जब यहाँ से मेरे बच्चा झोपड़ी में पड़ी है। कितनी सर्दी पड़ रही है, कितनी सर्दी पड़े, झोपड़ी में मेरा बच्चा पड़ी है, जाड़े का मौसम चल रहा है। किसानों का रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट 18 महीने के अंदर हो जाना चाहिए। मैं नहीं बोल रहा, ये कानून बोल रहा है, बट 30 महीने से ज़्यादा हो गए और वो खुले आसमान के नीचे इस ठंड में अपने बच्चों के साथ, अपने मवेशियों के साथ जी रहे हैं। उनका कोई रिहेबिलिटेशन और रीसेटलमेंट आज तक के डेट में नहीं हुआ है, जो कि बहुत दुखद है। एक वेलफेयर स्टेट जिसकी हम कल्पना करते हैं, उसका ये कभी भी ये एसेंस नहीं रहा है, ना तो उसका ऐसा कोई स्कोप है, पर जो कुछ चल रहा है वो मनमानापन है। The farmers are not against the multi-crore Jewar airport project. They claim that they have been uprooted and displaced and not adequately compensated or rehabilitated. Rules have been flouted and they have been denied compensation which they rightfully deserve. The project, they say, is coming up at the cost of their lives and livelihood. और एयरपोर्ट बनना भी चाहिए और हम खुद सहमत हैं, इसलिए हमें कोई एतराज़ नहीं है। हमारे देश का वो हो रहा है, ठीक है, आपको ऐतराज नहीं है, लेकिन आप चाहते हैं कि जो 2013 का कानून है उसके हिसाब से 2013 के अनुसार हमें वो मिलना चाहिए, मौज वगैरह मिल अच्छे के लिए नहीं आया, एयरपोर्ट दुखी करने के लिए आया। असल बात यहाँ है जी, बहुत दुखी हैं अब किसान या सरकार में बहुत ज़्यादा। While the government has claimed that the airport, once completed, will create at least 1 lakh jobs, attract investments, boost tourism and uplift the economy, the farmers claim that all this cannot and should not happen by uprooting a farmer from his field and by leaving him jobless and penniless. घर के बेघर कर देना अत्याचार है। दुनिया बसाती है घर और इन्हें घर उजाड़ा जी। हमारे पे कोई नोटिस नहीं आया मकान तोड़ने का, ले जी आप इतनी जल्दी यहाँ मकान बना लो। डेवलपमेंट तैयार हुआ और हमारे यहाँ बिल्डोजर चला दिया जी, झड़ देना सी। कोई मांग नहीं है, किसानों को उनका हक दे दीजिए। बेचारे किसान खुद ही उनकी जिंदगी बन जाएगी, फिर उनको जेवर एयरपोर्ट से बनने बिगड़ने से उनको कोई लेना देना नहीं है। उनको तो अपनी जिंदगी, अपने परिवार को चलाना है। इज्जत की जिंदगी जिसे बोलते हैं लाइफ विद डिग्निटी, जो हमारा फंडामेंटल राइट है, उसका वायलेशन ना हो। कान खोल के सुन ले उत्तर प्रदेश सरकार, जिला प्रशासन, यमुना प्राधिकरण और भारत सरकार, हम जगह नहीं छोड़ेंगे। हम अपनी जान की बाजी लगा देंगे हम जब तक 4 गुना हमारे प्रत्येक किसान को नहीं मिल जाए।